السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج کے ویڈیو میں سنتے ہیں ناول عبداللہ کی ایپیسوڈ نمبر 15۔ میں چکر ختم کر کے واپس اپنی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جانے میرا دل اتنی زور زور سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں 1، 2 اور 3 کہا اور آنکھیں بند کر لیں، اور پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہونے کے باوجود میں ایک بار پھر اچھل پڑا۔ ہاں، وہی 2 سلگتی آنکھیں۔ میرے ذہن میں آواز گونجی، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور پھر ڈرتے ڈرتے بند کیں، اور زیر لب جیسے اپنے آپ سے ہی پوچھا، تم کون ہو اور آخر میرے پیچھے ہی کیوں پڑے ہو؟ اور تم کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ آنکھیں ہنس دیں۔ میں صرف اسی کو نظر آتا ہوں جس کو نظر آنا چاہتا ہوں، ورنہ تم انسانوں میں ایسے جنونی اور پاگل بھی موجود ہیں جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور مجھے پانے کے لیے برسوں جانے کتنی تپسیا اور کتنے جاپ کرتے ہیں، دن رات صبح شام اپنا جیون جلاتے ہیں، قبرستانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں ایک طرف کھڑے ہو کر سالوں جنتر منتر پڑھتے ہیں، قبروں سے مردے نکال کر ان کی ہڈیوں کو سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں اس امید پر لگاتے ہیں کہ شاید وہ مجھے دیکھ پائیں گے، لیکن جواب میں صرف اپنی بنائی ہی کھوتے ہیں عمر بھر کے لیے۔ کئی تو ایسے بھی ہیں جو اپنے جیسے مرے انسانوں کا خون کرنے سے بھی نہیں چوکتے، صرف اس امید پر کہ شاید وہ کبھی میری ایک ہی جھلک پا لیں گے، لیکن میں ان میں کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ میرا احسان مانو کہ میں کسی پریشانی یا امتحان کے بغیر تم سے آج محو کلام ہوں۔ مجھے اس کی باتوں سے الجھن سی ہونے لگی تھی، لہٰذا میں اپنی تلخی چھپا نہیں پایا۔ اچھا، اب مجھ پر اس مہربانی کی وجہ بھی بتا ہی دو۔ وجہ کچھ خاص نہیں ہے، بس تم مجھے اچھے لگ گئے ہو۔ مجھ سے دوستی کرو گے؟ دوستی؟ اور وہ بھی تم سے؟ لیکن تم ہو کیا بلا؟ میرا مطلب ہے کہ تم کون سی مخلوق ہو؟ وہ میری بات سن کر ہنس پڑا۔ میں جس سے بگڑ جاؤں اس کے لیے واقعی ایک بلا ہوں، لیکن جس پر مہربان ہو جاؤں اس کی دنیا بدل دیتا ہوں۔ تمہاری دنیا والے مجھے چھلاوا کہتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ چھلاوا؟ تو تم کیا کوئی جن بھوت وغیرہ ہو؟ وہ پھر ہنسا۔ تم چاہو تو بھوت ہی سمجھ لو۔ کیا تم نے کبھی کوئی بھوت دیکھا ہے؟ میں ابھی تو الجھن میں تھا۔ کیا تم سامنے آ کر مجھ سے بات نہیں کر سکتے؟ مجھے یوں بند آنکھوں سے بات کرنے سے الجھن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کہ میں صرف تم پر ہی خود کو واضح کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے میں اب بھی اوجھل ہوں۔ اب تم چاہو تو آنکھیں کھول سکتے ہو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بالکل میرے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈر کر اپنے پیر سکیڑ لیے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی عجیب تھا، جیسے کوئی بلی کوئی اونچی چھلانگ لگانے سے پہلے اپنے پیروں پر اپنا پورا بوجھ ڈالتی ہے اور اگلے پنجوں کو زمین پہ ٹکا کر اپنا جسم تولتی ہے۔ وہ بھی یوں ہی زمین پر اپنا پورا وزن اپنے پیروں پر اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اور ہاتھوں کے پنجے کھولے ہوئے یوں بیٹھا تھا جیسے ابھی اگلے ہی پل کسی پھرتیلے چیتے کی طرح کوئی اونچی زکند لگا کر درخت کے کسی اونچی شاخ پر جا بیٹھے گا۔ اس کے وجود میں جیسے کوئی پارا سا بھرا ہوا تھا اور نس نس سے بے چینی ٹپک رہی تھی۔ اس نے غور سے میری جانب دیکھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اس کی جانب دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ تم مجھ سے دوستی کرو گے یا نہیں، لیکن کوئی بھی جواب دینے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری دوستی اتنی آسان نہیں ہے۔
कुछ शराइत पर पूरा उतरना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता इसके बाद जब तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो दुनिया की हर आसाइश, वो सब कुछ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो सब तुम्हारे कदमों में होगा। बस सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश दिल से होंठों पर आने तक की देर होगी और इस जहां की हर नेमत तुम्हारे इख्तियार में होगी। अच्छा, तो अब लगे हाथों वो शराइत भी बता दो जो तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे पूरी करना होंगी। शर्त कोई खास बड़ी नहीं है, बस तुम्हें अपना ईमान मुझे सौंपना होगा। मैं उसकी बात सुनकर उछल ही तो पड़ा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? उसने गौर से मेरी जानिब देखा। तुम समझे नहीं या फिर समझना नहीं चाहते? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कही। बस तुम्हें अपना मजहब तर्क करना होगा। तुम मुसलमान होने के बावजूद अपने मजहब का कोई भी फर्ज रुकन अदा नहीं करोगे, कभी मस्जिद में कदम नहीं रखोगे। कलमा, नमाज, रोजा, ये सब तुम्हारे लिए मेरी दोस्ती के बाद अजनबी हो जाएंगे। बस इतनी सी शर्त है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उससे में मेरे तन बदन में आग लग गई। वाह, क्या शर्त है! तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी बातों में आकर अपना मजहब तर्क कर दूंगा? कभी नहीं। मैं लानत भेजता हूं ऐसी दोस्ती पर। दोबारा कभी मेरे रास्ते में ना आना। वो जोर से हंसा। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने जो अमल तुम्हें तर्क करने के लिए कहा है, तुम खुद न जाने कब का वो सब कर रहे हो। जरा गौर तो करो। तुमने आखिरी नमाज कब पढ़ी थी? तुम्हें रोजा रखे हुए कितने साल हो चुके हैं? और आखिरी बार तुमने किसी मस्जिद का दरवाजा कब पार किया था? तुम और तुम्हारा पूरा घराना तो ईद के दिन भी सूरज चढ़े नींद से जागता है। वो किताब जो पिछले 7-8 सालों से तुम्हारे घर के ताक में पड़ी मट्टी से अट चुकी है। मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी कह दी है जो तुम यूं मुझसे उलझ रहे हो? मैं उसकी बातें सुनकर मजीद गुस्से और खजालत का शिकार हो गया। बहरहाल उसने कहा तो सच ही था। तुम्हें ये सब किसने बताया? और कान खोलकर सुन लो कि नमाज पढ़ना ना पढ़ना मेरा जाती मामला है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ईमान ही तुम्हारी दोस्ती के इवज बेच डालूं। एक लम्हे पहले मुझे जमीन पर दिखाई दिया, लेकिन अब अगले ही लम्हे वो दरख्त की पहली शाख पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो मुसलसल बातचीत के दौरान हर लम्हा अपनी जगह बदलता ही रहता था, जैसे उसे किसी भी करवट चैन ना हो। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान होते ही सदा के न शुक्रे हैं। ठीक है, जाओ मरो उसी जिल्लत की जिंदगी में जहां सुबह से शाम तक तुम्हारी सिर्फ बेइज्जती ही होती है। जिससे कल तक तुम इतने बेजार आ चुके थे, किसी पेड़ के नीचे बैठकर मरने के तरीके सोच रहे थे। तुम जैसों का मर ही जाना बेहतर है। मैं तुम्हें आज जाने दे रहा हूं, लेकिन याद रहे कि अब इस तरफ का रुख तभी करना जब तुम मेरी दोस्ती का फैसला कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। वरना अगर तुम्हें मैंने दोबारा तुम्हारे इस बराए नाम ईमान के साथ अपने इस ठिकाने के आसपास में भटकते हुए देखा तो मैं खुद तुम्हारी खूब खबर लूंगा। तुमने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, मेरा जानलेवा रूप नहीं देखा। अब जाओ यहां से। वो पल भर में जाने कहां गायब हो चुका था, लेकिन उसके लहजे ने मुझे खूब डरा दिया था। मैंने चौंक कर सामने देखा तो चौकीदार दूर से लंबे लंबे डग पड़ता हुआ अपनी जानिब आता दिखाई दिया। मैं उसके सवालात से बचने के लिए जल्दी से वहां से उठ गया और मुखालिफ सिमत चलता हुआ पार्क से बाहर निकल गया। असगर साहब की दास्तान अभी यहीं तक पहुंची थी कि सुबह की अजानें शुरू हो गईं। मैं कुछ इस तरह से उनकी कहानी में मगन हो गया था कि वक्त गुजरने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। हमें वक्फा लेना पड़ा, हालांकि ये खासा मुश्किल काम था। मैंने असगर साहब को कुछ आराम करने का कहा, लेकिन खुद मेरा पूरा दिन
उनकी कहानी के तानों बानों में उलझा रहा। खुदा खुदा करके दिन ढला और रात को फिर हमें तन्हाई मुयस्सर आई तो असगर साहब ने फिर से अपनी कहानी का सिरा वहीं से जोड़ा जहां से टूटा था। अब्दुल्ला मियां इंसान बड़ा कमजोर है। वो इरादे बांधता है और फिर तोड़ देता है। मेरे इरादों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं उस रोज छलावे को दुत्कार तो आया, लेकिन अगले ही रोज सुबह ही से मेरी परेशानियों का वही पुराना ना खत्म होने वाला सिलसिला फिर से शुरू हो गया। वही सरकारी दफ्तर और वही अफसरों की चिक-चिक। सुबह सवेरे ही सबसे पहले बीवी ने फ्लैट के किराए का रोना धोना शुरू कर दिया कि मालिक मकान कई महीनों से किराया बढ़ाना चाहता है और कल शाम को उसने फाइनल नोटिस भी दे दिया है कि किराए में 3,500 का इजाफा कर दो वरना फ्लैट छोड़ो। और हमारे पास वक्त भी सिर्फ 2 हफ्तों का ही बचा था। बीवी से लड़कर और जान छुड़ाकर दफ्तर पहुंचा तो वहां भी अफसर उखड़े खड़े हुए थे कि हफ्तों पुरानी फाइल्स भी अभी तक मेरी मेज पर क्यों पड़ी हैं। वहां से डांट खाकर अजीम के दफ्तर पहुंचा तो वो पहले ही गुज़श्ता दिन मेरे दफ्तर से जल्दी उठ जाने का पता चल जाने पर गुस्से में आग बगोला मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और फाइल उठाकर मेरे मुंह पर दे मारी और मुझे ऑफिस से निकल जाने का हुक्म दे दिया। मतलब ये नौकरी भी मेरे हाथ से जा चुकी थी। दफ्तर से बाहर निकला तो घर वापसी का सोचकर ही मेरा दिल उलटने लगा कि जब मेरी बीवी को पता चलेगा कि मैं किराए का इंतजाम करने की बजाय उल्टा अपनी लगी बंदी नौकरी भी गंवा आया हूं तो वो तो आसमान सर पर उठा लेगी। मैंने पीसीओ से 2-4 दोस्तों को फोन किया कि शायद कुछ कर्ज का इंतजाम हो जाए, मगर मैं पहले ही सबसे इतना कर्ज ले चुका था कि अब तो कई दोस्त मेरी आवाज सुनकर ही फोन बंद कर देते थे। छलावे ने ठीक ही कहा था, मुझ जैसों को तो मर ही जाना चाहिए। मैंने कुछ सोचा और कदम बढ़ा दिए, पर जब मैं अपने ख्यालात की जलकार से चौंका तो मैं फिर वही उसी पार्क में उसी दरख्त के नीचे खड़ा था और शाम का मलगजी अंधेरा मेरी किस्मत की कालक की तरह आसपास फैल चुका था। कुछ ही देर में उसने दरख्त के पीछे से झांका। तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें खबरदार भी किया था। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मार डालो। मुझ में खुद को मारने की हिम्मत नहीं है। वो हंसा, बड़े बुज़दिल हो, खुद मर भी नहीं सकते और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? मैंने बेबसी से सर झटका। ठीक है, तुम भी उड़ा लो मजाक, मेरी अपनी दुनिया वाले भी यही करते हैं। मेरी पेशकश अब भी कायम है। जिस मजहब से तुम पहले ही मीलों दूर हो उसे मेरी खातिर तर्क करने में आखिर तुम्हें एतराज ही क्या है? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी खातिर अपनी शर्त में कुछ नरमी पैदा करता हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या समझे? तुम चाहो तो सिर्फ 1 साल के लिए आजमाइशी तौर पर अपना ईमान मेरे पास गिरवी रखवा सकते हो। अगर साल के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी ही बेहतर थी तो तुम वापस लौट जाना, लेकिन ख्याल रहे कि इस 1 साल मुआहदे में हम दोनों को एक दूसरे की हर बात मानना होगी। जो तुम कहोगे वो मैं मानूंगा और जिस चीज से मैं तुम्हें मना करूंगा तुम्हें उससे पलटना होगा। बोलो, मंजूर है? मैं अभी तक उसी हिचकिचाहट का शिकार था, लेकिन मेरा मतलब है कि अगर किसी गलती या मजबूरी की वजह से मैंने मजहब का कोई रुकन इख्तियार कर लिया तो क्या होगा? क्या उसके बाद? उसने मेरी बात काट दी। उसकी तुम फिक्र ना करो। जब तुम एक बार सच्चे दिल से अपना ईमान मेरे पास गिरवी रखवा दोगे तो फिर साल भर तुम्हारे दिल में अव्वल तो ऐसी बात पैदा ही नहीं होगी, और फिर अगर तुम्हारा दिल भटका भी तो मेरे पास उसका इंतजाम भी मौजूद है। तुम ये सुर्ख धागा अपने गले में बांध लो। ये पूरे 1 साल तक तुम्हारे गले में मौजूद रहेगा और तुम्हें हर इस बात से बचाएगा जो मुझे पसंद नहीं है।
या जिससे हमारी दोस्ती की किसी भी शर्त पर कोई भी आंच आ सकती हो। यूं समझ लो कि यही सुर्ख धागा मेरे और तुम्हारे राब्ते और मुआहिदे का ज़ामिन होगा। मैंने सर झटक कर देखा तो धागा उसके हाथ से मेरे हाथ में मुंतकिल हो चुका था। मैं शदीद हिचकिचाहट और कशमकश का शिकार था। उसने मुझे उकसाया, सोचो मत, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। तुम्हें कौन सा दिन या दुनिया में कोई एक भी मुयस्सर है। दिन की तरफ तुम गए ही नहीं और दुनिया तुमसे भागती रही। अब एक मौका मिला है तो कम से कम इस जिंदगी को ही जी पाओ। सिर्फ 1 साल ही की तो बात है, फिर उम्र पड़ी है दिन को जीने के लिए। बांध लो धागा। लोग ऐसी जिंदगी का एक पल जीने के लिए उम्र पर एड़ियां रगड़ते हैं और मैं तुम्हें एक पूरा साल दे रहा हूं। बांध लो ये धागा, देर मत करो। मेरे जहन में जैसे एक साथ कई चक्कर चल रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और धागा गले में डालकर उसकी डोर कस ली। दफातन एक जोरदार आंधी चली। मुझे यूं लगा ये हवा इस दरख्त की शाखें मुझ पर ही गिराकर दम लेगी। गर्द का एक तूफान उठा। मुझे एक तेज चक्कर आया और मैं लहराकर वहीं जमीन पर गिर गया। दोबारा मुझे तब होश आया जब कोई धीरे धीरे प्यार से मेरा कांधा हिलाकर मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। उठ जाए ना, देखें कितनी देर हो गई है। आज दफ्तर नहीं जाना क्या? मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मेरी झगड़ालू और लड़ाका बीवी नहायत तमीज और प्यार से मुझे चका रही थी और उसके हाथ में गर्म चाय का एक कप भी था। ओह बेटी, मैंने जल्दी जल्दी जोर से अपनी आंखों को रगड़ा। मैंने पहले कोई ख्वाब देखा था या अभी इस वक्त कोई सपना देख रहा था? मैं हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। उसने प्यार से मेरे बाल सहलाए और तकिया सीधा करके मुझे बिठाया और चाय का कप मेरे होंठों से लगा दिया। उफ, किस सोच में पड़े हैं? जल्दी करें, मैं आपके कपड़े इस्त्री करके बाथरूम में लटका देती हूँ। जल्दी से चाय पीकर नहा लें, मैंने पानी गर्म करवा दिया है। मेरी बीवी कमरे से मुस्कुराती हुई निकल गई। उसकी ये मुस्कुराहट मैंने आज से ठीक 25 साल पहले देखी थी, जब हमारी ताजा ताजा शादी हुई थी। तब से लेकर आज तक मैं उसकी मुस्कुराहट तो दूर, उसके 2 मीठे बोलों को भी तरस गया था। बीवी के निकलते वक्त मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी तो उसमें मुझे पीछे अपनी अलमारी के ऊपर वो बैठा मुस्कुराता हुआ नजर आया। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने ख्वाब के से आलम में चाय खत्म की और कमरे से बाहर निकला तो मेरी बड़ी बेटी तौलिया और साबुन और दूसरी बेटी हाथ में मेरे इस्त्रीशुदा कपड़े पकड़े नजर आईं। अब्बा, अब जल्दी से नहा लें, फिर हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। आज उस्मा ने अपने हाथों से आपके लिए पराठे बनाए हैं। उस्मा मेरी छोटी बेटी का नाम था। मैं हैरत से वहीं गिर पड़ने के करीब था। इसी कैफियत में गुसल करके बाहर निकला तो मेरा बड़ा बेटा वकार मेरे जूते पालिश कर चुकने के बाद उन्हें कपड़े से चमका रहा था, जबकि छोटा मेरे लिए खुश्क स्लीपर लिए पहले से मेरे इंतजार में गुसल खाने के बाहर खड़ा था। मेरी तो जैसे जुबान ही गुंग हो चली थी। मेरी बीवी और बेटियों ने जिस प्यार से मुझे नाश्ता करवाया और बेटों ने जिस मोहब्बत से लंच बॉक्स का टिफिन मेरे हवाले करके मुझे दफ्तर के लिए रुखसत किया, ऐसा मैंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। फ्लैट से निकलकर बस स्टॉप पर पहुंचा तो जैसे बस मेरे इंतजार में ही खड़ी थी। मेरी पसंदीदा 3 नंबर की खिड़की वाली सीट भी खाली थी, जहां बैठकर मैं ड्राइवर से कहकर अपनी पसंदीदा कैसेट भी सुन सकता था। आज खिलाफत को कंडक्टर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था और जाने क्यों मुझे ये भी महसूस हुआ कि पल भर के लिए मैंने ड्राइवर के सामने लगे हुए बैक मिरर में अपनी उसी मेहरबान की एक झलक भी देखी थी। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो पिछली सीट पर कोई और बैठा हुआ था। दफ्तर पहुंचा तो चपरासी ने नहायत अदब से सलाम किया और बताया कि तौसीफ साहब 2-3 बार मेरा पूछ चुके हैं
توصیف صاحب ہمارے سیکشن آفیسر تھے اور اصولوں اور وقت کے نہایت پابند۔ میں نے جھجکتے ہوئے ان کے کمرے میں قدم رکھا تو مجھے دیکھتے ہی بولے، آئیے آئیے اصغر صاحب، بھائی مبارک ہو، آپ کو سپرنٹینڈنٹ پروموٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ جو ہاؤس لون کے لیے آپ نے درخواست دے رکھی تھی وہ قرضہ بھی منظور ہو گیا ہے، کیشیئر سے اپنا چیک لیتے جائیے گا۔ حیرت اور خوشی کے مارے میری آواز بند ہو گئی۔ میری پروموشن کا کیس پچھلے 5 سالوں سے اٹکا ہوا تھا، کیونکہ میری ACRs ٹھیک نہیں تھیں، اور یہ گھر کے لیے اس قرضے کی درخواست تو میں نے بھرتی کے دوسرے سال سے دے رکھی تھی، اور اب تو میں اسے بھول بھی چکا تھا۔ میں شادی مرگ کی کیفیت میں توصیف صاحب کے کمرے سے نکلا تو مجھے میری میز کے اوپر اکڑوں بیٹھا نظر آیا۔ کیوں، اب تو خوش ہو؟ خوش؟ ہاں، مگر یہ سب کیسے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم جو سوچو گے وہ ہو جائے گا۔ صبح سے اب تک صرف وہی تو ہو رہا ہے جس کے بارے میں تم برسوں سے سوچتے آ رہے ہو، تو بس میں نے آج تک کی تمہاری ساری خواہشوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ ویسے تم انسان بھی بڑے عجیب ہوتے ہو، تم نے ان معمولی اور گھٹیا سی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی ساری عمر گوا دی۔ یہ معمولی سا ہاؤس لون اور اس سپرنٹینڈنٹ کی یہ بڑے کلرکوں والی نوکری، بس یہی پہنچ تھی تمہاری آج تک کی ہر سوچ اور ہر جذبے کی۔ سچ پوچھو تو مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہارے معیار پر۔ میں حیرت سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس وقت دفتر میں کچھ زیادہ چہل پہل نہیں تھی، کیونکہ باقی سارے لوگ کانفرنس ہال میں تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائیں، مطلب یہ کہ میں جو سوچوں گا تو میرے لیے ویسا ہی کر دکھاؤ گے، کچھ بھی جو میرے دل میں آئے گا۔ وہ مسکرایا، آزمائش شرط ہے، اور پھر میں نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو جب میں عظیم کے دفتر پہنچا تو میرے دل نے کہا، عظیم میرے لیے دروازہ کھولے، اور پھر دروازہ کھلا تو عظیم میرے سامنے فائلیں لیے کھڑا تھا۔ اس نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا، آئیں سر پلیز، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ شبانہ بھی اس کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں شدید خواہش کے باوجود کچھ ڈگمگا سا گیا۔ اس نے میرے ذہن کو دھیرے سے کھٹکھٹایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت یہ تمہارا نہیں، تم اس کے باس ہو۔ جو دل میں بڑاس بری ہے سب نکال دو۔ میں پھر سے خود اعتماد ہو گیا، اور عظیم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے اس کے کام کے بارے میں پوچھا۔ شبانہ میری کرسی کے پیچھے ہی کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عظیم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ عظیم نے جلدی سے فائل میرے سامنے پیش کی۔ میں نے 2 صفحے پلٹے اور پھر فائل اٹھا کر پوری قوت سے عظیم کے منہ پر دے ماری۔ یہ کام کرتے ہو تم؟ آج تک تمہیں ٹھیک طرح سے ڈرافٹنگ کرنا بھی نہیں آئی؟ بوڑھے گدھے ہو گئے ہو اور ابھی تک غلطیاں کرتے ہو؟ عظیم کے ماتھے سے ویسے ہی پسینہ ٹپک رہا تھا جیسے روزانہ میرے ماتھے سے ٹپکتا تھا۔ شبانہ ویسے ہی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے کھڑی تن سے عظیم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں پھر عظیم پر داڑا، چلو اٹھاؤ یہ فائل اور اپنی منحوس صورت میری نظروں کے سامنے سے دور لے جاؤ۔ دوبارہ اس طرح کا ڈرافٹ میرے سامنے لے کر آئے تو میں فائل سمیت تم کو بھی اس کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ دفع ہو جاؤ۔ عظیم خجالت اور شرمندگی سے کانپتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شبانہ مسکراتی ہوئی میری آغوش کی جانب بڑھی، لیکن اب اس کی باری تھی۔ میں زور سے چیخا، اور یہ تم کیا ہر وقت اپنے ہونٹوں پر طوائفوں جیسی نمائشی مسکراہٹ سجائے میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو؟ مجھے اپنے دفتر میں کام چاہیے، بازار نہیں۔ تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں بھی اسی وقت دھکے دے کر دفتر سے نکال دوں گا۔ شبانہ کا رنگ ہی جیسے اڑ گیا، اور وہ چند لمحے حیرت اور صدمے میں گنگ سی کھڑی رہ گئی، اور پھر روتے ہوئے دوڑ کر دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔
मेरे अंदर बरसों के उबलते हुए लावे पर जैसे किसी ने पूरा ठंडा दरिया उंडेल दिया हो। इतना सुकून मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैं अजीम के कमरे से बाहर निकला तो सारे दफ्तर के लोग हैरत में शौक ज़दा से खड़े थे, और ये सारा माजरा उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये वही सब लोग थे जिनके सामने मैं बरसों से जलील हो रहा था, और आज उन्होंने मुझे अपने अंदर का लावा उन लोगों पर उबलते हुए देख लिया था जिनसे वो अंदर ही अंदर शायद खुद भी शदीद नफरत करते थे, लेकिन खौफ और मजबूरी की वजह से कुछ बोल नहीं सकते थे। मैंने हॉल से निकलते हुए सबको अलविदाई सलाम किया तो सबसे पहले जावेद के हाथ ताली बजाने के लिए उठे, और फिर धीरे धीरे उन सबकी तालियों से हॉल गूंजने लगा। मैं मुस्कुराते हुए दफ्तर से बाहर निकला तो मैंने धीरे से खुद से सरगोशी की, तुमने ये सब कैसे किया? मेरा मतलब है अजीम मेरे सामने यूं बेगी बिल्ली बना कैसे खड़ा था? आखिर वो है तो मेरा बॉस ही। वो मुस्कुराया, तुम इन बातों में अपना जहन मत उलझाओ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। बहरहाल फिलहाल तुम नए नए मेरे दोस्त बने हो तो यूं समझ लो कि ये सब नजरबंदी का खेल था। अजीम ने तुम्हें अपने ही किसी बड़े अफसर के रूप में देखा। तुम्हारे दफ्तर से निकलने के बाद उसे रफ्ता रफ्ता ये एहसास होगा कि उसे जलील करने वाले खुद तुम थे। बहरहाल अब तुम कुछ बड़ा सोचो। पूरा दिन गुजर गया ये चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। बड़ा सोचूं? क्या मतलब? मतलब ये कि सबसे पहले तुम्हें इस फटीचर फ्लैट से निकालकर तुम्हारे लिए अपने दोस्त के हम मनसब जिंदगी का सोचना होगा। आखिर अब तुम मेरे दोस्त हो, कोई मामूली इंसान तो नहीं, लेकिन तुम इंसानों की मजबूरियां भी ध्यान में रखना पड़ती हैं। बहरहाल ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर मैंने वाकई सब उस पर छोड़ दिया। अगले 3 दिन के अंदर न जाने मेरे बरसों पुराने खरीदे गए चंद प्राइज बॉन्ड्स और हाल में खरीदा गया लॉटरी का एक टिकट यके बाद दीगरे यूं निकले कि अगले 1 महीने के अंदर मैं पहले लखपति और फिर अगले चंद महीनों में करोड़पति हो चुका था। दौलत मुझ पर यूं बरस रही थी जैसे मैंने कोई पार्स पा लिया हो, और मैं जिस चीज को हाथ लगाता वो सोना बन जाती। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी जिंदगी अक्सर बदल चुकी थी, और इन 6 महीनों में इस सिलावे ने खुद मुझसे कोई खास काम करने को भी नहीं कहा था, सिवाय एक आध बार किसी वीराने से चंद जले हुए बाल उठाकर किसी घर के आंगन में डालने के लिए, या फिर किसी जानवर का गोश्त किसी एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह फेंक आना वगैरह वगैरह। सच पूछो तो मुझे ये सब काम इंतहाई बचकाना लगते थे, लेकिन मैंने सोचा कि होगा कोई जादू टोने का चक्कर, लिहाजा मैंने कभी पसोपेश नहीं किया। हाल बता इस तमाम अरसे में मैं दीन से बिल्कुल दूर रहा, और खुद दीन रफ्ता रफ्ता मेरे घर से दूर होता गया। इसका अंदाजा मुझे पहली बार 6 महीने के बाद उस वक्त हुआ जब एक शाम मैं थका हारा अपने ऑफिस से घर पहुंचा। मेरा कारोबार इतना वसी हो चुका था कि मुझे अपने और अपने 2 बेटों के लिए अलग अलग 3 अजीमशान दफातर कायम करना पड़े थे। हमने अपने कारोबार के लिए एक बहुत बड़ी इमारत खरीद ली थी, और मैं, मेरे बेटे और उनका सारा स्टाफ इसी इमारत में बैठता था। हमारा जमीनों की खरीदो फरोख्त का कारोबार था, और हम शहर के सबसे बड़े बिल्डर कहलाते थे। हम तीनों अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों में सुबह घर से निकलते और शाम तक हम आधा शहर फतह करके घर वापस लौटते, तो आमतौर पर घर सुनसान मिलता था। उन नौकरों से पता चलता कि बेगम साहिबा किसी तकरीब पर गई हुई हैं और छोटी बीबियां अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई हुई हैं। अलबत्ता उस शाम मैं घर पहुंचा तो मैंने एक अजीब ही मंजर देखा। मेरी बीवी की क्लब वाली तमाम नई सहेलियां मेरे घर के ड्राइंग रूम में मौजूद थीं, और उनके सामने मेज पर ताश के पत्तों और पैसों का ढेर लगा हुआ था। फ्लैश चल रहा था और कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था।
मुझे उस दिन पता चला कि मेरी बीवी ने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया है। अभी मैं हैरत के इस पहले झटके से संभल नहीं पाया था कि मैंने खिड़की से बाहर छोटी उस्मा को शहर के एक मशहूर लोफर अमीरजादे की गाड़ी से उतरते हुए देखा, और जिस अंदाज में वो उससे गले मिलकर रुखसत हुई वो मुझे शर्म से पानी पानी करने के लिए काफी था। मैंने उस वक्त तो किसी न किसी तरह खुद पर काबू पाए रखा, लेकिन रात को जब मैंने बीवी से घर को जुआ खाना बनाने और बेटी की आजाद ख्याली पर इस्तफसार किया तो उसने लापरवाही से इटला कर कहा, ओ कम ऑन असगर, क्या हो गया है आपको? आप महलों तक पहुंचने के बावजूद अभी तक ज़हनी तौर पर उसी 2 कमरे के फ्लैट में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सोसाइटी में मूव करने के लिए ये सभी तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। और रही बात उस्मा और शहजाद की, तो इसकी आप फिक्र ना करें। लड़के के घर वाले चंद रोज में उस्मा का रिश्ता लेने आ रहे हैं। मैंने तिल मिलाकर कहा, बात रिश्ता लेने देने तक पहुंच चुकी है और मुझे खबर तक नहीं। तुम जानती भी हो इस लड़के को, 1 नंबर का गुंडा है। अमीर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? मेरी बीवी ने मुझे यूं देखा जैसे मैं किसी और दुनिया की मखलूक हूं। क्या हो गया है आपको? इस माशरे में लड़की का रिश्ता देते वक्त सिर्फ लड़के की हैसियत और बैंक बैलेंस देखा जाता है। चलें अब आप सो जाएं, खामखा परेशान ना हो। मेरी बीवी तो करवट बदल कर चंद लम्हों में खराटे भरने लगी, लेकिन मेरी नींदें उसी रोज से हराम हो चुकी थीं। मैंने चलावे से इस बारे में शिकायत की तो वो भी तंजिया सी हंसी हंस दिया। तुम्हारी बीवी ठीक ही कहती है, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। हमेशा छोटे छोटे मसलों में उलझे रहते हो। यही जुआ अगर तुम्हारी बीवी शहर के किसी बड़े जिम खाने या ऑफिसर क्लब नुमा जगह पर खेलती तो तुम इसे नई तहजीब में शुमार करते, और अगर वही ताश के पत्ते घर में खुल गए तो वो जुआ हो गया। और शुक्र करो तुम्हारी बेटी ने उस लड़के को घर रिश्ता लाने का कहा है, वरना जिस माहौल में वो पल बढ़ रही है वहां लड़कियां या तो भागकर शादी करती हैं या फिर बाहर शादी रचाकर घर वापस आती हैं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि एकदम और आसानी से बेतहाशा पैसा मिल जाने के अपने भी कुछ असरात होते हैं, और फिर तुम इंसान एक और पाबंदी भी तो खुद पर लगाए रखते हो। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, हलाल और हराम। तो असगर साहब, तुम्हारे घर में पानी की तरह बहता पैसा भी तो तुम्हारे इंसानी मियार के मुताबिक हराम का है। हो सकता है ये सारे कमालात इसी हराम के पैसे से खाई हुई रोटी के हों। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी बातें तल्ख और कड़वी तो होती थीं, लेकिन सच होती थीं। अगले दिन एक और बुरी खबर मेरी मुंतजिर थी। मेरा छोटा बेटा क्रिकेट पर करोड़ों का सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया। गोरों की कोई टीम आई थी खास उसे पकड़ने के लिए। छलावे की मदद ना होती तो उम्र भर बाहर की जेलों में सड़ता रहता। अभी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाया था कि बड़ी बेटी ने नशे में धुत तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए किसी राहगीर को कुचल दिया। बेटी की FIR में जब मैंने ये पढ़ा कि उसके मेडिकल टेस्ट में शराब का नतीजा मस्बत आया है तो मैं बिल्कुल ही ढह गया। आसानी से मिला हुआ और बेतहाशा हराम का पैसा वाकई अपना असर दिखा रहा था। मैं एक शाम इसी गम में उदास सा अपने दफ्तर में बैठा साहिल की तरफ खुलती खिड़की से दूर लंगर अंदाज जहाजों को देख रहा था कि उसकी आवाज मेरे मन में गूंजी। क्या बात है, बहुत उदास हो? अब तो जिंदगी की हर नेमत तुम्हारे पास है। अब इस उदासी की वजह क्या है? मेरे होते हुए भी मेरा कोई दोस्त उदास और परेशान हो तो फिर मेरा क्या फायदा? मैंने ठंडी सियाह भरी। पता नहीं, मेरा दिल अब इन चीजों से उचाट हो गया है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि गुर्बत के अपने मसाइल और अमारत की अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन दोनों सूरतों में इंसान का मुकद्दर सिर्फ बेचैनी ही है। सुकून कहीं भी मैसर नहीं आता। उसने मेरा दिल बहलाने की कोशिश की। अच्छा छोड़ो ये मायूसी की बातें, ये बताओ कभी कोई इश्क वगैरह किया है जिंदगी में? इश्क? क्यों दिल जलाते हो?
तुम्हारे आने से पहले खाने के लाले पड़े हुए थे। ऐसी मीश किसे सोच सकता है? उसने इसरार किया, फिर भी शादी से पहले कभी तो कोई अच्छी लगी होगी। क्या तुम्हारे पास कोई भी सुनहरी याद नहीं है?